Sir, right now in Goa and your film has been screened at the EP 56th edition. Sir, what do you like to say about your film? This is a film about a Hindi writer. The title is Vice Chancellor of a Chalk University, Padma Bhushan Amritlal Nagar. He is one of the Hindi writers in India who has not just created novels, he created the social, cultural history of the country through his novels. He is a mirror of the Indian society, I would like to say. Sir, this project within how many days has been completed and what was the challenging thing? It took more than 5 years to complete this film because this is a very research-oriented film. We had to compile 70 years long journey in just 90 minutes. So the challenge was because this is a feature-length documentary, the challenge was to keep it engaging. Because जब भी साहित्यकारों की बात होती है, people say कि यार half an hour is more than enough. So 90 minute film की तरह लोगों को engage बिठाए रखना, that was the greatest challenge. And research was great challenge because 70-year long journey of a person along with the literature was a difficult task to do. Sir, when you got to know the film is getting featured in the EP, so how was this thing? What do you felt? She is the first timer. I've been attending festivals. She's first time in Goa. I think she should answer in a bit of matter. Hey, for me, so this is honor, or we got this platform, this huge international platform through our film. So this is great honor to me, and as a family member, as a filmmaker, as a reader of Nagarji. Ma'am, how was your bonding with the cast and the lead actor, actress? See, there is हमने जो कास्ट किया है वो 3 एक्टर्स को कास्ट किया था. नागाजी इज यंगर वर्जन, नागाजी इज मिडिल एज एंड नागाजी इज लेटर एज. सो दिस वाज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आपको रिजेंबल करना है विद द कैरेक्टर. सो बट विद द गॉड्स ग्रेस, बिकॉज हमारी जो इंटेंशन थी एक बहुत ही मोटिवेटिंग, एक बहुत ही सोलफुल फिल्म बनाने की. सो हमें बहुत अच्छी कास्टिंग मिली एंड नोबडी कैन से कि दिस इज नॉट रियल नागाजी. So the photograph of Nagarji and the character दोनों merge कर गए हैं एक दूसरे में. So that's how we casted the 3, and his wife, I played his wife in the movie. Yeah. So we created so many like his incidents and his life moments. Ma'am, when you came to know the film is getting selected for the EP 56th edition, and this is one of the oldest Asia's film festival. So how was this thing? Yeah, first was for me, Rajesh ji, when give me this news, for me was कि I got the Miss Universe crown. Like ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री का एज फिल्म मेकर, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट ट्रेन्ड फ्रॉम एनी वेयर, वी आर फ्रीलांसर्स एंड वी आर मेकिंग फिल्म. ये रिकग्निशन मिलना हमें लगता है लाइक वी गॉट आफ्टर दिस PIB प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो दिस इज आवर डिग्री. So I am taking it as a degree. Like now we got the stamp कि we are also a little bit reasonably okay kind of filmmakers. मैम, जब आपको फर्स्ट टाइम इस मूवी की स्क्रिप्ट मिली, जैसे कि आप इस मूवी में एक्ट कर रहे हो, जब स्क्रिप्ट मिली तो क्या थॉट्स थे आपके? Yeah, for me script मिलना was not a surprising factor because I am luckily from the family. मैं नागर परिवार की डॉटर इन लॉ बहू हूँ, बट वो कोई अचीवमेंट नहीं है. फॉर मी दिस वॉज अ स्ट्रगल कि मैं इस फैमिली से कनेक्टेड हूँ. तो व्हाट आई एम, मुझे खुद को भी ढूंढना था कि नागर जी इतना बड़ा नाम है और मैं क्या कर रही हूँ. सो नागर जी को सबसे पहले पढ़ने को मिला एंड उसके बाद में उनको पढ़ते पढ़ते आई मेड अ रेडियो सीरीज ऑन नागर जी इज़ वन ऑफ द नॉवल अमृत और विश. उसके बाद में मुझे लगा मुझे और पढ़ना है, पढ़ा. देन ग्रेजुअली आई बिकम अ राइटर. मेरा पहला उपन्यास आ गया नागर जी को पढ़ते पढ़ते. सो इट्स बिकम माई टीचर फॉर राइटिंग. मेरे हस्बैंड ने क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपने नाना जी के साथ रहे हैं, तो मुझे लगता है मैंने नागर जी को देखा नहीं, बट मैंने और ज़्यादा क्लोजली देखा है थ्रू माई हस्बैंड्स आई. कि वो मुझे बताते थे वो कैसे चलते हैं, सुबह वो कैसे वो खड़ाऊँ पहन के टक टक की आवाज़ आती है, हाउ ही लाफ, हाउ ही टॉक विद द पीपल. सो दिस हेल्प्ड मी टू लाइक कनेक्ट विद द नागर जी. और इस कैरेक्टर को करना वॉज, मैंने उनकी वाइफ के बारे में सुना था, उनकी बेटर हाफ जो थी, अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं होती वो इतने बड़े राइटर नहीं बन सकते थे. तो वो कैसी थी, वो कैसे बात करती थी, वो कैसा कनेक्शन था, बिकॉज दे वर बडीज. उनकी वो चाइल्डहुड में शादी हो गई थी.
So for me, this was script milna was not the surprising factor. Although I was more conscious कि क्या मैं वैसा पोर्ट्रे कर सकूँगी, but राजेश जी because he has done the camera work in it, इतना अच्छा इन्होंने पिक्चराइज किया कि लगता नहीं है कि आई एम डूइंग सम एक्टिंग और वर्ड. इट वाज सो नेचुरल एंड बिकॉज डायलॉग्स तो नहीं थे तो साइलेंट एक्ट करना था. दिस वाज मोर एडवांटेज. तो इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया फ्रेम्स को. तो लगता है दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, लाइक आई एम विद हिम. Sir, in this film you attended and handled multiple things, writer, DOP and this thing. So how you managed, sir, and took 5 years. So how was the journey? You see, initially funding was a problem. When we started, we didn't have a single money. We spent our money for 1 or 2. We were just struggling to get the people on board and interview them. Then after 2.5 years, we got little funding from some agency, and this is how it started. Then research takes hell of a time. You know, in documentaries they say okay, research till the time your head starts bleeding. So Nagar became my girlfriend. I mean, as a researcher, he became I used to tell her कि ये मेरी आत्मा में आ गया. I am not a very हिंदी वाला आदमी नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा, but just because of Savita I got connected with the subject. तो जब पढ़ना शुरू किया I fell in love with Nagar. I said यार there is so much of resonance. तो जो मल्टीपल चीज़ों की बात ये है कि वो डिफ़िकल्टी के ज़्यादा हमारे लिए एडिड बेनिफिट होता है. बिकॉज यू हैव रिटन द स्क्रिप्ट, यू आर डायरेक्टिंग, पार्टली डायरेक्टिंग, सो यू आर ओनली ईच एवरीथिंग, यू नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डू यू वांट, है ना. सो यू कैन प्ले विद द एक्टर्स, यू कैन प्ले विद द लोकेशंस, यू नो ईच एंड एवरी फ्रेम हाउ यू वांट. इवन व्हाइल वी वर शूटिंग आई न्यू कि यहाँ पे म्यूज़िक मुझे किस तरह का लगाना है, मुझे एक्सप्रेशन क्या चाहिए, Minute details. सो दैट जो बहुत ही छोटी छोटी नुआंसेस होती हैं. सो व्हेन यू हैव यू नो, कहते हैं कि स्क्रिप्ट में कैरेक्टर जब आपकी उंगलियों पे नाचने लग जाते हैं, है ना, सोते जागते उठते बैठते नागर नागर व्यूज नागर नागर नागर. मैं इनको बोलता था कि यार ये क्या मेरे पल्ले पड़वा दिया यार, इस आदमी ने मेरा जीना आराम कर दिया ये, वो सोते जागते नागर. सो दैट इश्क जो है, वो लव जो है, वो सिनेमा में हम थोड़ा बहुत क्रिएट कर पाएँ. दैट इज यू नो मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस. We, you know, began this journey with a single interview. My mother-in-law was in Delhi, और ऐसे हम उनसे बात कर रहे थे कि कुछ उन्होंने मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्री देखी एंड माइन्यूटली देखने के बाद में सोचा कि अब तुम बाबूजी पर काम करो. तो वो आई हुई थी, मैं कहा तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. तो हमने उनका इंटरव्यू किया था. उस समय हमें बिल्कुल नहीं पता था हमारा इस फिल्म का क्या होगा, हाउ विल वी गो फर्दर एंड थिंग क्या होगी. तो शी बिकेम अ मोटिवेटिंग फैक्टर टू अस कि उन्होंने हमें इतना एलैबोरेटली बताया, तो हमें लगा वी गॉट 1 इंटरव्यू, लेट्स स्टार्ट अब आगे से. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. एंड एडिटिंग में हमें पूरा 1 साल लगा. बहुत 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 बड़े कैरेक्टर हैं. उनकी लाइफ जो है, लाइफ जर्नी, लिटरेचर जो है, वो जनरेशन के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है. अगर वो जैसे उनकी एक लाइन है कि ज़िंदगी लैला है उसे मजनू की तरह प्यार करो, है ना. सो दिस लाइन कैन कम फ्रॉम द पर्सन हु इज़ डीपली इनटू लव विद हिमसेल्फ, है ना. एंड दूसरी बात, उस ज़माने में इतना बोल्ड, इतना डेयरिंग राइटर, वो उनको भांग पीने का बड़ा शौक था. तो एक बार संजय गांधी लखनऊ गए तो वहाँ के 3 प्रोमिनेंट राइटर थे. सो संजय गांधी सेठ के मुझे तीनों से मिलना है. तो 2 लोग भागे भागे चले गए. पंडित जी ने मना कर दिया. उनको बोला कि जाके बोलो शाम को हमारा भांग छानने का समय होता है, उस वक्त भगवान भी है तो उससे भी नहीं मिलते हम, यू नो. एंड उनका एक नारा था कि 4 बजे तक व्यस्त, 4 बजे के बाद मस्त. सो ना बिल्कुल फ़कीराना अंदाज, लाइफफुल, ह्यूमरस आदमी. लोग सोचते हैं राइटर बड़े सीरियस होते हैं. ऑन द कंट्रारी, ही वाज टोटली फुल ऑफ लाइफ. एंड हिज डोर्स वर ओपन फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई नेबर है, चाहे वो बड़े राइटर्स हैं. तो वो बहुत, उनका जो प्यार है आज भी उनके साथ ऐसा ही कनेक्शन है. मैं आपको किस्सा बताता हूँ. वो रशिया गए किसी लिटरेरी फेस्टिवल में, और पंडित जी को बिना भांग के मतलब एक दिन भी गुजार नहीं सकते हैं. सो हाउ ट्रिकी ही वाज, यू कैन इमेजिन कि उन्होंने भांग का चूर्ण बनाया और एक बॉटल में डाल लिया और कस्टमर के जाके बोला कि सर पेट में दर्द रहता है, सुबह शाम जो है ना पानी के साथ देसी दवा लेनी पड़ती है. कैन यू इमेजिन in 50s, 60s, some writers doing such kind of pranks. So you need daring. He was humanist, first humanist writer अगर आप कहें हिंदुस्तान में, वो हैं.
बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में 1947 में ही वॉज द वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन पे राइटर और 20 पॉपुलर क्लासिक्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। और उसके बाद एक दिन डिसाइड किया 15 अगस्त को जब पंडित नेहरू भाषण दे रहे थे कि आज के बाद अपनी कलम से प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना, आई विल गो बैक टू माई रूट्स एंड क्रिएट लिटरेचर। लखनऊ आ गए, लखनऊ में काम किया और ऑल इंडिया रेडियो में बाद में नौकरी की, वो भी छोड़ दी। वो नौकरी तो कर ही नहीं सकते थे ना, उनको फ्रीडम ऑफ हम पिंजरे में बनने वाले इंसान नहीं हैं। Sir, one more last question I would like to ask you. Now AI film also is coming, so animation is already existing. Does this going to hurt any way to the artist? You see, whenever new technology comes, it's difficult to digest. Obviously, जब हमारे पास DVD थी, उसके बाद पेन ड्राइव आया, so I think as a positive person we should accept the changes. That is law of the nature. कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन ये देखिए अच्छा कितना होगा। You know, जब पहली बार व्हील की इन्वेंशन हुई थी तब भी लोगों के कंसर्न थे, नया दौर फिल्म की, है ना, वो कंसर्न्स विल बी देयर, बट इफ लुक एट द पॉजिटिव साइड, AI विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आप फिल्मों की मत देखिए कि आप एक टेक्स्ट से वीडियो बनाते हैं। अभी केरला में जंगल में ट्रेन जाती थी, बहुत से हाथी मर जाते थे, जाइंट एनिमल लूजिंग, यू नो, दिस इज सो ट्रैजिक। उन्होंने थर्मल कैमराज लगाए, जैसे हाथी ट्रेवल कर रहे हैं तो विद इन सेकेंड AI से इंफॉर्मेशन जाती है टू द हेड क्वार्टर्स और वहाँ से अगर ट्रेन इस रूट पे तो कुछ स्लो डाउन कर देती है। सो AI इज़ द फ्यूचर, इसको डरो नहीं, इसको डरो नहीं, इसको गले लगा लो। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द रेव इज इनविटेबल डू इट। सो दैट इज ओनली, आप क्रिप करके कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। बट आइडिया इज, जब हम अब एक जनरेशन के कंसर्न की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उनको ये नहीं करना कि मोबाइल टेक्नोलॉजी या AI से बचो, उनको बोलो कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कैसे करो, हाउ यू कैन मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, हाउ कैन ब्रिंग चेंजेस टू AI, दैट शुड बी द, you know, motto. Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you, ma'am.